ओके, तो नेक्स्ट का केस स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन सिंगल अनसिमेट्रिकल कर्व्ड मूविंग वेन। ओके, so this is a single vein. We are not considering here series of vein which are mounted on the wheel, है ना, series of veins like this. First we are considering single vein, and this single vein is unsymmetric. Unsymmetric means the tangential angle at inlet is theta, okay, and tangentially angle at outlet is phi. So this will be equal to this here at outlet, and this will be equal to this here at inlet. So both these angles are not equal. If theta will be equal to phi, then it will be called symmetric curved vein. If theta is not equal to phi, then it will be called unsymmetric curved vein. And this vein is also moving. Okay, moving vein. So let's say the velocity of vein is u. Now this vein is moving with velocity u, so at the inlet its velocity, let's say u1, it will be also u, and at outlet its velocity u2, it will be also u. So all these u1, u2, u will be equal. Yes or no? These will be equal, first thing. Now let's say nozzle is here and you will release jet from the nozzle. So nozzle is here and nozzle is at rest. So first of all, नोजल पर आप मास फ्लो रेट सप्लाई करेंगे, एंड इन दी स्टडी स्टेट दिस मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नोजल का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेट से ए एंड this will be the absolute velocity of jet. Absolute velocity means with respect to earth, okay, v1. And let's say it is making nozzle right now making some angle alpha with the horizontal, okay, alpha with the horizontal. So here this v1 velocity will also make alpha angle with the horizontal, okay. अब यहां पर देखो, this v1 will not be tangential on the vein. Why? Because this vein is also moving. तो मूविंग के केस में हम अल्फा का एंगल इस तरीके से सेट करेंगे इसका, सो दैट द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस एंड दिस, दैट विल बी VR1 resultant velocity. That VR1 must be tangential on the vein. VR1 को टेंजेंशियल क्यों रखेंगे, क्योंकि इस पर एंट्री पर शॉक ना लगे। शॉक लगेगा तो लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। सो आवर इंटेंशन इज to keep the resultant velocity of v1 and u1, that will be VR1, and VR1 must be tangential on this vein to avoid any shock at the entry. ठीक है ना। अब V1 और इसका U1 का रिजल्टेंट कैसे लेंगे, देखो U1, U2 all three are equal and these are vector. So actually these are vectors. This V1 is also vector. This V1 is also vector. So what is V1? V1 is the velocity of jet with respect to earth. What is the velocity of vein with respect to earth? That is u1, okay, at the inlet. इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड होगा, हमको रिलेटिव वेलोसिटी पता करना है, तो हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रेस्पेक्ट टू वेन। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा वेलोसिटी ऑफ जेट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू वेन, ऐसे निकलेगा। हेडिंग पॉइंट और नॉट। तो इसको जब आप पलटेंगे तो ये माइनस बन जाएगा कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ वेन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये माइनस बन जाएगा। तो ये कितना है, दिस इज योर v1. सो एक्चुअली v1 माइनस u1 वैक्टर विल गिव यू दी vr1 वैक्टर, ये वैक्टर आपको मिलेगा।
तो ये वेक्टर अप्रोच है पूरा पूरा। दिस कंप्लीट इज एक्चुअली वेक्टर अप्रोच। सो VR1 वेक्टर जो होगा वो V1 और U1 वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो VR1 इस तरीके से टेंजेंशियल होगा ऑन द वेन, इट विल बी टेंजेंशियल ऑन द वेन लाइक दिस। ओके, टेंजेंशियल ऑन द वेन लाइक दिस, एंड here this is U1, this will be U1, and now this is VR1। ओके, VR1। तो कैसे हुआ देखो, वेक्टर A वेक्टर B, दिस विल बी वेक्टर B माइनस A, या ऐसे सोचो वेक्टर A प्लस B इक्वल टू C। तो यहाँ लिखा हुआ है वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल्स टू वेक्टर C। सो वेक्टर B इज एक्चुअली इक्वल टू वेक्टर C माइनस वेक्टर A। तो हो गया ना इसका रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऐसे बनेगा। अभी इसको एक्सटेंड करते हैं टेंजेंशियली और इसको एक्सटेंड करते हैं रेडियली लाइक दिस। दिस एंगल will be theta, it is tangential on the vein, and this angle will be alpha। Okay, now here the tangential component of V1, tangential component of V1 will be called whirl velocity at inlet, VW1। Okay, and the radial component of V1 will be called flow velocity, VF1। So here to here it is VW1, here to here it is VF1। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसका ये रेडियल कंपोनेंट है। इसको टेंजेंशियल बोल दो, इसको रेडियल बोल दो, बात आई ना समझ में। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स लाइक दिस। अभी इनलेट की बात करते हैं, सॉरी आउटलेट की बात करते हैं। तो ये इस तरीके से जाएगा फ्लूइड, और यहाँ पर relative velocity will be tangential on the vein, so this will be tangentially out, so this will be your relative velocity at outlet, and this will be, let's say u1 is equal to u2। तो u1 इतना है तो u2 भी इतना ही वेक्टर बनाएंगे। These both vector will be equal, so this will be u2 actually, this will be u2 actually, है ना, u2 both will be equal and it will be u2। now this will be v2, again here ये होगा टेंजेंशियल और ये होगा रेडियल कंपोनेंट। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द v2 ये कहलाएगा whirl velocity एट आउटलेट, एंड ये कहलाएगा आपका फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट, VF2, फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट। हियर दिस एंगल विल बी योर फाई एंगल, ये फाई है तो ये फाई होगा, ये फाई है तो ये फाई होगा। ठीक है, इस एंगल को नाम देंगे द एंगल बिटवीन V2 एंड U2, एंगल बिटवीन V2 एंड U2। ठीक है ना, यहां पर देखो ये V2 है वेक्टर, ये U2 है वेक्टर। अगर इसका अपोजिट कर दूं तो ये माइनस U2 वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। अगर इसको मैं अपोजिट कर दूं देन इट विल बी माइनस U2 वेक्टर, दिस वेक्टर इज माइनस U2 वेक्टर, दिस वेक्टर इज माइनस U2 वेक्टर। ओके, सो V2 प्लस माइनस ऑफ U2 इज इक्वल टू VR2। तो यहां भी VR2 ये रिजल्टेंट हो गया ना, दिस माइनस दिस, है ना।
दिस माइनस दिस। तो फिर से ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। बाकी इनको अभी डिटेल में और बनाने जा रहे हैं। अभी हमने इनको एक जनरल वे में बना लिया, ठीक है ना। अभी हमने इनको एक जनरल वे में बना लिया। तो ये एंगल भी देखो क्या बनेगा, ओ थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये फाई है तो ये भी फाई होगा, है ना। दिस इज फाई, सो दिस इज फाई, सो दिस इज फाई, दीज आर दी एंगल्स। तो इस तरीके से इनलेट पर हमको इस तरीके से अल्फा सेट करना होता है नोजल का, सो दैट कि जो रिजल्टेंट आएगी वेलोसिटी इसकी और इसकी रिजल्टेंट वो टेंजेंशियल हो जाए। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी टेंजेंशियली इन करेगा और रिलेटिव वेलोसिटी ही टेंजेंशियली आउट करता है, ये ध्यान रखना। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एंगल यहां अल्फा है और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एंगल ही यहां पर बीटा है। क्लियर हुई बात। अभी देखो इनलेट पर हम वेलोसिटी डायग्राम की बात करते हैं। तो इनलेट पर वेलोसिटी डायग्राम क्या बनेगा, लुक इनलेट पर क्या वेलोसिटी डायग्राम बनेगा। इनलेट पर हमारा क्या क्या बना हुआ है, यहां से बना देता हूं मैं, यहां से बना देता हूं। सबसे पहले है V1, फर्स्ट ऑफ ऑल V1 इस तरीके से बना हुआ है, V1 है ना, V1। उसके बाद दूसरा वेक्टर है U1, दूसरा वेक्टर है U1, ये वेक्टर U1 हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट VR1 या रिलेटिव वेलोसिटी VR1। रिजल्टेंट में ये नहीं सोच लेना इन दोनों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। यहां पर ऐसे एक टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक खींचेंगे इस तरीके से वर्टिकल लाइन, और यू कैन से रेडियल लाइन, ठीक है। तो इसमें यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा कंपोनेंट कौन सा, वर्ल वेलोसिटी बन रहा है VW1। तो VW1 जरा बताओ, इस अल्फा एंगल के रेस्पेक्ट में V1 के टर्म में मिल जाएगा कि नहीं, इट विल बी इक्वल टू V1 कॉस अल्फा। और अगर मैं थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूं ऐसे, तो थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में इतना ये कंपोनेंट किसका होगा, दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ VR1 एंड इट विल बी VR1 cos थीटा। ये सुनो, VR1 cos थीटा। सो द टोटल VW1 कैन बी रिटन एज U1 का मैग्नीट्यूड प्लस VR1 cos थीटा का मैग्नीट्यूड, इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। नाउ कम टू दी रेडियल कंपोनेंट, फ्लो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट VF1। VF1 देखो अल्फा के रेस्पेक्ट में V1 साइन अल्फा बन जाएगा कि नहीं, और इसी को जरा बताओ थीटा के रेस्पेक्ट में क्या VR1 साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं, यस। तो अगर अल्फा एंगल देखोगे तो इसका ये साइन बनेगा, और अगर थीटा एंगल देखोगे तो इसका ये साइन कंपोनेंट बनेगा। क्लियर होगी बात इतनी। सो दीज आर द रिलेशन फॉर वेलोसिटी ट्राइंगल एट द इनलेट। ये हो गया आपका वेलोसिटी डायग्राम या वेलोसिटी ट्राइंगल एट द इनलेट। यहां पर लिख दो वेलोसिटी डायग्राम एट इनलेट। अभी इनके क्या क्या नाम हैं वो सारे अपन लिखेंगे, डोंट वरी। एट इनलेट, तो इनलेट पर तो ये पिक्चर आपको गिवन है, मान लो। आउटलेट पर फॉर ए गिवन पिक्चर देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटी। एक तो जो हमने बना दी, इसमें हमने बीटा क्या लिया, लेस देन 90 लिया है, मतलब
एक्यूट एंगल ले लिया, ठीक है, बीटा लेस देन 90। दूसरा पॉसिबिलिटी होगा बीटा इक्वल टू 90। तीसरा पॉसिबिलिटी होगा बीटा मोर देन 90। सो देयर आर एक्चुअली 3 पॉसिबिलिटी एट द आउटलेट। तो उन तीनों पॉसिबिलिटी का यहाँ वेलोसिटी डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। तो 3 पॉसिबिलिटी आर और कैन बी देयर एट द आउटलेट। तो आउटलेट पर देखो कैसे कैसे बनेगा। फर्स्ट है अपना VR2, या पहले V2 बना दे देता हूं मैं, V2 बना देता हूं, चलो। दिस इज V2, दिस इज V2, V2 है इस तरीके से, एंड दिस इज U2, दिस इज U2, ओके। V2 माइनस U2 हो जाएगा VR2। तो दिस इज योर VR2, this angle is phi. So this is the first case where beta is less than 90. This is the first case where beta is less than 90. Okay. तो इसमें देखो this angle will be beta and beta is less than 90. Now VW2 component will be here. This will be VW2. इसको इधर बना दूं, इधर ही बना देता हूं। This is VW2 vector and this will be VF2 vector, VF2 vector, okay. Now here this vector you can write like plus U2, है ना, and this vector you can write like minus U2 vector। डायरेक्शन पलट दिया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है U2 U2, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है U2 U2। अभी VF2 किसके बराबर होगा, देखो ये होगा V2 साइन बीटा, V2 साइन बीटा, और ये किसके और बराबर होगा दिख रहा है क्या, VR2 साइन फाई, ठीक है। तो अगर बीटा एंगल देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में V2 साइन बीटा के बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और फाई के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। गॉट द पॉइंट और नॉट। यहां देखो एक और चीज, ये जो यहां से यहां तक इतना मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर होगा, दिस मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू एक्चुअली U2 का मैग्नीट्यूड प्लस VW2 का मैग्नीट्यूड, एंड इट कैन बी रिटन एज VR2 cos फाई। यस सुनो, ये VR2 है, ये फाई है, तो ये VR2 cos फाई होगा, और U2 का मैग्नीट्यूड प्लस VW2 का मैग्नीट्यूड, दोनों ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हुआ है सारा। क्लियर हुई बात। तो ये अपना केस 1 हो गया। दिस इज द फर्स्ट केस वेयर बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस, दूसरे केस में लेट से बीटा इज मोर देन 90 डिग्री। तो बीटा मोर देन 90 डिग्री कैसे बनेगा, इन दैट केस V2 will be like this, VR2 will be like this, and V2 minus U2, so this will be your U2। या फिर मैं क्या करता हूँ, U2 को ऐसे लिख देता हूँ, दिस वेक्टर इज U2 प्लस U2 वेक्टर, दिस वेक्टर इज U2। सो V2 प्लस करेंगे इसमें क्या, माइनस का U2, तो ये माइनस का U2 वेक्टर है,
this is minus u2 vector. So v2 प्लस ऑफ माइनस u2 इज इक्वल टू vr2. बन गया रिजल्टेंट, उसको वो सब्सट्रैक्ट करके आ रहा है, ये फाई एंगल होगा. अभी v2 का जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो तो ऐसे होता है, ये बनेगा vf2. तो दिस विल बिकम vf2 दिस टाइम ना. एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर this will become vw2 actually, and बीटा एंगल will be like this. बीटा एंगल कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई. दिस इज बीटा एंगल. बीटा एंगल इज मोर देन 90. बीटा एंगल इज मोर देन 90. ठीक है ना. तो these will be the relations, these will be angle, these will be the component. इस केस में देखो vf2 will be equal to what, ये बीटा ये पाई माइनस बीटा, तो v2 साइन ऑफ पाई माइनस बीटा बन जाएगा, और vr2 साइन ऑफ फाई इसके बराबर होगा. सो ऑल दीज रिलेशंस फ्रॉम दिस ट्राइंगल यू कैन नोट डाउन. ओके, इजीली यू कैन नोट डाउन. So this is the second case when your beta is actually more than 90. Now come to the third case. थर्ड केस क्या है, बीटा इज इक्वल टू 90 है ना, रेडियली एग्जिट हो रहा है. तो इसमें v2 होगा ऐसे, u2 इज लाइक दिस, दिस इज प्लस u2, and this is vr2, this is phi, and this angle will be बीटा. बीटा एंगल ये बन जाएगा, this is beta angle equal to 90 degree. In this case, what is the radial component of v2, that is vf2, तो वो उसी के बराबर हो जाएगा. और vw2 तो यहाँ बनेगा नहीं है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ v2 कैन नॉट बी मेड हेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो जीरो हो जाएगा. ओके, और ये u2 वेक्टर है और ये माइनस u2 वेक्टर है. तो आप ऐसे देख सकते हैं v2 प्लस ऑफ माइनस u2 वेक्टर इक्वल टू vr2. ये डायग्राम बन गया. ठीक है. सो इन दिस केस vf2 इज इक्वल टू v2 and vr2 sin phi will be equal to v2 and vw2 will be 0. So all these relations you can derive from this triangle. Clear हुई ना बात. All these relations you can derive from this triangle or diagram like this. Okay, तो ये हो गए अपने velocity diagrams at outlet. लिख दो इधर velocity diagrams. तीन तरीके की पॉसिबिलिटी है. So all three possibilities we have drawn at the outlet. So velocity diagrams at outlet बन गया. Okay, that's it. Now what are the theoretical what are the names of these vectors? First of all, v1 will be called absolute jet velocity at inlet. v2 क्या होगा, absolute jet velocity at outlet. u1 क्या है, vane velocity at inlet and vane velocity at outlet. तो for this single vane both will be equal to u. r1 is relative velocity at inlet, relative velocity outlet. vw is called wall velocity at inlet tangential and wall velocity at outlet tangential. ये रेडियल है. फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, ये फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट. अल्फा इज द एंगल बिटवीन v1 एंड u1 एट इनलेट. ओके,
तो इसको हम यहाँ जेट का एंगल भी बोल सकते हैं एब्सोल्यूट, या गाइड वेन एंगल भी बोल सकते हैं। गाइड वेन क्या होता है, जब हम टरबाइन में जाएंगे, तो टरबाइन में देयर विल नॉट बी सिंगल वेन, ऐसे ये सिंगल वेन तो होगा नहीं, एक्चुअली ऐसे सीरीज ऑफ वेन व्हील पर, सेंट्रल व्हील पर माउंटेड होंगे, ऐसे सीरीज ऑफ वेन है ना, और वो ऐसे एक रनर व्हील पर ऐसे बंद होंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाहर एक और व्हील होगा जिस पर इस तरीके के वेन होंगे उल्टे, अपोजिट डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड गाइड वेन। इनका एंगल ये हम चेंज कर सकते हैं, दिस एंगल वी कैन चेंज। तो यहां पर देखो, हमको इस वाले वेन पर टेंजेंशियली इनपुट कराना है ना, तो इस वाले वेन का, दिस इज कॉल्ड गाइड वेन, इस वाले वेन का यहाँ ये एंगल हम पोजीशन ऐसे टिल्ट कर सकते हैं इसको, है ना। ये जो गाइड वेन है ये राइट नाउ ऐसे है ना, देखो इस तरीके से है, ये गाइड वेन ऐसे है, इसको आप ऐसे टिल्ट कर सकते हैं लाइक दिस, लाइक दिस। सो गाइड वेन एंगल मींस अल्फा कैन बी एडजस्टेबल, अल्फा को हमने ऐसे एडजस्ट करेंगे सो दैट फाइनली वी आर वन जो हो वो हमारे इस वाले वेन पर टेंजेंशियली हिट करे। यहाँ तो सिंगल वेन है तो नोजल बना रखा है, टरबाइन के केस में अंदर नोजल तो लगा होगा नहीं, ठीक है। जो क्लोज केसिंग वाली टरबाइन है उसमें नोजल तो लगा नहीं होगा, उसमें तो केसिंग होता है, ठीक है। तो वो नाम है आपका गाइड वेन एंगल। बीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन V2 एंड U2। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन V2 एंड U2। थीटा इज वेन एंगल एट इनलेट टेंजेंशियल टू दी वेन, और वेन एंगल एट आउटलेट टेंजेंशियल टू दी वेन, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता ही दिया। एट इनलेट रिलेटिव वेलोसिटी VR1 कैप टेंजेंशियल टू अवॉइड एनी शॉक एट एंट्री, नो लॉस ऑफ एनर्जी एट एंट्री, या मिनिमाइज द लॉस, ओके। तो यहां तक का कहानी हो गया। अभी जो वेलोसिटीज के रिलेशन हैं वो आप लिख सकते हो, जैसे V1 वेक्टर माइनस U1 वेक्टर, ये किसका वैल्यू देगा, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर। ये वेक्टोरियली मैंने सब्सट्रैक्ट किया है, ये मैग्नीट्यूड सब्सट्रैक्ट मत कर देना कभी क्वेश्चन में, जैसे इसका मैग्नीट्यूड 10 दिया है, इसका 6 दिया है, तो इसका 4 नहीं होगा, ठीक है। दीज आर दी वेक्टर वेक्टोरियली ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। वेक्टोरियली ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, तो वेक्टोरियल वो कॉस रूल साइन रूल की हेल्प से आप करेंगे। जैसे ये मान लो U1 है, ये मान लो V1 है ना, दोनों अल्फा एंगल बन रहा है, हमको क्या निकालना है, V1 माइनस U1, तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B करना है, तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B करके VR1 कैसे निकलेगा, A का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर माइनस 2AB कॉस अल्फा, ऐसे करके निकलेगा ना मैग्नीट्यूड। डायरेक्टली 10 - 4 नहीं कर देना है, गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो दिस इज नॉट मैग्नीट्यूड, यहाँ वेक्टर भी लिखना है, वेक्टर बनाना है। सिमिलरली V2 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर विल गिव यू VR2 वेक्टर, ये वेक्टर है। मैग्नीट्यूड क्या क्या इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VW1 विल बी गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V1 कॉस अल्फा, ऐसे होगा। Similarly, magnitude of VW2 will be equal to magnitude of V2 cos beta. These are magnitudes now. Okay, magnitude. Next, VF1 इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, V1 साइन अल्फा के बराबर, और ये ही किसके बराबर था, VR1 साइन थीटा के बराबर, VR1 साइन थीटा के बराबर भी था, इसका मैग्नीट्यूड VR1 साइन थीटा के बराबर भी था, इस तरीके से। सिमिलरली VF2 का मैग्नीट्यूड के किसके बराबर होगा, V2 साइन बीटा, डायग्राम को याद करो, या फिर लिखेंगे VR2 साइन फाई,
VR2 साइन फाई, ऐसे होगा। ठीक है, अगला रिलेशन लिखेंगे अपन PW, या इस तरीके से लिखो U1 प्लस VR1 cos थीटा, दिस वॉज ऑल्सो इक्वल टू VW1 एंड, और कौन सा बचा, सारे हो गए रिलेशन। अच्छा, ये दो अपन ने एक साथ लिख दिए, कोई चक्कर नहीं, तो पांचों हो गए वैसे तो। इसको यहाँ से हटाकर VR1 साइन थीटा यहाँ पर लिख दो, VR1 साइन थीटा। इसमें क्या बनेगा, U2 प्लस VW2 इक्वल टू VR2 कॉस फाइव, ये बना था। और VF2 का ये रिलेशन इधर लिख दो। सारे रिलेशन हो गए। एक्चुअली ये सब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको बस ये डायग्राम सही से बनाना है। डायग्राम सही बना होगा, कंपोनेंट तो इजीली आप देख सकते हो कौन सा ऐड करना है कौन सा सब्सट्रैक्ट करना है। इजीली यू कैन derive the formula if you can correctly draw the velocity diagram। चलो अभी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, या मास फ्लो रेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो स्ट्राइकिंग पर सेकेंड कितना होगा, एम डॉट रो ए रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, बिकॉज वेन इज ऑल्सो मूविंग। जब जब वेन मूव करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी से ही स्ट्राइक करेगा। ओके, सो नाउ along the x direction, along the x direction fx force will be equal to m dot into, क्या लिखते हैं अपन, रिलेटिव वेलोसिटी in x direction initially minus relative velocity in x direction finally, this will be the formula। so fx will be equal to m dot into रिलेटिव वेलोसिटी x डायरेक्शन इनिशियली कितना होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी का x कंपोनेंट, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे है VR1, कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, राइट साइड है पॉजिटिव होगा, तो प्लस का VR1 कॉस थीटा माइनस VR2 कॉस फाइव। आउटलेट पर ये होगा, आउटलेट पर कैसे है, ऐसे है ना VR2, और ये फाइव बना रहा है, तो इसका ये कंपोनेंट होगा x, नेगेटिव x डायरेक्शन में इसलिए माइनस होगा, तो VR2 कॉस फाइव हो गया। क्लियर है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। सो VR1 कॉस थीटा प्लस VR2 कॉस फाइव, ऐसे बनेगा। इसको बोल दो इक्वेशन 2। ठीक है, अभी वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मास फ्लो रेट कितना है, रो ए VR1, VR1 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, VR1 कॉस थीटा, VR1 कॉस थीटा, तो VR ऐसे था, हमने लिखा भी है देखो, VR1 कॉस थीटा विल बी इक्वल टू VW1 माइनस U1 बन जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू VW1 माइनस U1। अगला VR2 कॉस फाइव की वैल्यू, VR2 कॉस फाइव, सो VR2 कॉस फाइव इक्वल टू U2 प्लस VW2।
u2 प्लस vw2, और यू कैन राइट vw2 प्लस u2, ऐसे लिख सकते हैं। इन तीनों का वैल्यू पुट कर दो इसमें, हेंस fx will be equal to rho a vr1 and inside it will be vw1 minus u1 plus vw2 plus u2 like this। ओके, ये बन जाएगा इक्वेशन। यहां पर लिखेंगे फॉर स्मॉल साइज ऑफ वेन, फॉर स्मॉल साइज ऑफ वेन u1 will be equal to u2 will be equal to u, all three will be equal, है ना, all three will be equal like this। u1 u2 दोनों बराबर होंगे और लेट से u के बराबर होंगे। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ वेन का मतलब क्या है? स्मॉल साइज ऑफ वेन का मतलब ये है कि जैसे मान लो इस वेन को जब हम आगे रनर व्हील पर माउंट करेंगे तो रनर व्हील ऐसे लगा होगा, ये सेंटर है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ एंट्री पर रेडियस r2 है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा u2 इक्वल टू r2 ओमेगा, और यहाँ तक रेडियस मान लो r1 है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ ज़्यादा होगा वेलोसिटी r1 इंटू ओमेगा। ओके, बट इफ द साइज ऑफ वेन इज नॉट लार्ज, इट इज़ वेरी स्मॉल लाइक दिस, इतना ही वेन है, तो नियरली r1 विल बी इक्वल टू नियरली r2, यस और नो? तो जब r1 r2 विल बी नियरली इक्वल, दैट मीन्स u1 u2 विल बी नियरली इक्वल। ओके, तो उस केस के लिए लिखा है वेन इज स्मॉल। हालांकि यहाँ तो हम लोग सिंगल वेन के लिए यूज कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर यूजिंग कैलकुलेटिंग फॉर द सिंगल वेन, बट फर्दर इट विल बी यूज्ड इन द सीरीज ऑफ वेन्स। सो फॉर दैट मैटर यहाँ पर लिखा है फॉर स्मॉल size of vein u1 u2 are equal, so these term will get cancelled out। तो कितना बच जाएगा? तो फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ जाएगा रो ए वी आर वन इनसाइड द ब्रैकेट vw1 प्लस vw2। ओके, एंड दिस इज लेट से इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये अपने को कब मिला है? ये मिला है इफ बीटा इज लेस देन 90। हमने यही केस मान के सॉल्व किया ना, हमारे डेरिवेशन में हमने बीटा लेस देन 90 लिया हुआ है कि नहीं, तभी हमने सॉल्व किया। तो लेस देन 90 पर vw2 लेफ्ट में, बट मोर देन 90 पर vw2 राइट में हो जाएगा, तो उसका साइन पलट जाएगा कि नहीं, उसका डायरेक्शन पलट जाएगा कि नहीं? तो प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, उसमें प्लस की जगह माइनस लिखेंगे। तो एफ एक्स हो जाएगा रो ए वी आर वन vw1 माइनस vw2 in case of if beta is more than 90, और बीटा अगर 90 हो जाता है, इन दैट केस vw2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यस और नो? तो बचेगा ही नहीं, vw2 बचेगा ही नहीं। ऑल्सो fx will be equal to rho a vr1 vw1 only, and this is the case when beta is 90। so if beta is 90 we know vw2 is 0। किस्सा ही खत्म हो गया। तो इन तीनों का कंबाइंड केस क्या लिख सकते हैं? इन तीनों का कंबाइंड केस क्या लिख सकते हैं? सो इन जनरल what can be the formula for the fx? The general formula for fx rho a vr1 vw1 प्लस माइनस vw2 ऐसे बन जाएगा।
ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। प्लस लेंगे कब? बीटा लेस देन 90। माइनस लेंगे कब? बीटा मोर देन 90। इसको जीरो कर देंगे कब? जब बीटा 90 होगा। सो इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, it will be given in the question, beta is less than more than equal to 90। क्लियर हुई ना बात? चलो, तो फोर्स निकल आया। फोर्स निकालने के बाद क्या बताओ, वर्क डन पर सेकंड फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वर्क डन पर सेकंड क्या होगा? वर्क डन पर सेकंड हो जाता है W इक्वल टू एफ एक्स इंटू यू। एफ एक्स इंटू यू, यहाँ टेंजेंशियली ही फोर्स लगेगा। टेंजेंशियली फोर्स ही बाद में रनर को रोटेट भी कराएगा, तो उसी का इंपॉर्टेंस है। एफ एक्स इंटू यू, तो रो ए यू इंटू वी आर वन, वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू, ऐसे लिखें। ठीक है ना? फिर अपन लिखेंगे वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट मास फ्लो रेट, पर यूनिट मास फ्लो रेट। तो वो होगा W डैश कर देते उसको, W अपॉन एम डॉट। तो एम डॉट का वैल्यू क्या है? एम डॉट का वैल्यू है रो ए वी आर वन। तो इस पूरे में रो ए वी आर वन कैंसिल हो जाएगा, या सुनो। सो ओनली यू इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू, इतना बचेगा। ओनली दिस विल बी देयर। नेक्स्ट, sometime they ask work done per unit weight of flow rate, work done per second। sometime they ask per unit weight of the mass flow rate। तो इधर लिखेंगे W डबल डैश, होगा W अपॉन वेट फ्लो रेट। तो यहाँ मास से डिवाइड किया, यहाँ क्या करेंगे, मास इंटू जी से डिवाइड करेंगे ना, इंटू जी से डिवाइड करेंगे। तो जी से यहाँ पर और डिवाइड हो जाएगा, सेम वैल्यू में जस्ट डिवाइड बाई जी ऑल्सो, दैट्स इट। ये आ गया। ओके, नाउ यू कैन टॉक अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ जेट। एफिशिएंसी ऑफ जेट, तो जेट का एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट, वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ जेट। ठीक है, तो वर्क डन पर सेकेंड कितना है? रो ए यू वी आर वन वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू अपॉन हाफ मास फ्लो रेट इज रो ए वी वन। ओके, दिस इज द मास फ्लो रेट, नॉट स्ट्राइकिंग वाला। दिस इज द मास फ्लो रेट एब्सोल्यूट, एनर्जी इज नॉट रिलेटिव। ओके, सो रो ए वी वन होगा इंटू वी वन स्क्वायर होगा। So rho A will be cancelled out. 2 will go upward. So 2u VR1 VW1 plus minus VW2 divided by V1Q, इतना आ जाएगा वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ जेट। चेक कर लो फॉर्मूला, 2u VR1 VW1 VW2 V1, करेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ now there can be .
3 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट होगा VR1 more than VR2. It happens generally. As veins are not smooth. Veins are not smooth. तो अगर वेन स्मूथ नहीं है तो रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा एंट्री पर, फाइनली क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। सेकंड, VR1 will be taken equal to VR2 if no friction या सिंपल यही लिख दो फॉर स्मूथ वेन्स। फॉर स्मूथ वेन, अगर क्वेश्चन में बोला जाता है वेन्स आर स्मूथ तो परफेक्टली स्मूथ मान लेंगे, इक्वल कर देंगे रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट एंड आउटलेट पर। एंड VR1 से VR2 ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये इंक्रीज किसने कर दिया, ये इंक्रीज होगा फॉर रिएक्शन टरबाइन। फॉर रिएक्शन टरबाइंस, रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे कि जो फ्लूइड एंट्री करता है वो हाई प्रेशर पर करता है। क्लोज केसिंग है तो हाई प्रेशर पर एंट्री किया, अंदर जाकर केसिंग में एक्सपेंड करता है, उसको एक्सपेंड करने का मौका मिलता है। एक्सपेंड कैसे करता है, एक्सपेंड किया तो उसका जो प्रेशर एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी रनर को भी घुमाने में काम आएगा और कुछ प्रेशर एनर्जी आउटलेट पर रिलेटिव वेलोसिटी को इंक्रीज करने में काम आएगा। सो आउटलेट पर रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी मोर देन इनलेट का रिलेटिव वेलोसिटी इन दिस केस व्हेन रिएक्शन टरबाइंस आर यूज्ड। ओके, तो ये चीज हम लोग डिटेल में करेंगे व्हेन वी विल स्टडी दी रिएक्शन टरबाइंस, बट फॉर सिंपल केसेस either VR1 will be more than VR2 or it will be equal for simplicity। सिंपल क्वेश्चन में स्मूथ वेन बोल देगा, वही अपने को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा याद रखना है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इसको एक याद रख लोगे बाकी तो हो ही जाएंगे। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये याद होगा, इसी में मल्टीप्लाई बाई यू कर दो, डब्लू निकल जाएगा, फिर उसमें इसको हटा दो तो पर यूनिट मास फ्लो रेट बन जाएगा, डिवाइड बाई जी कर दो, पर यूनिट वेट फ्लो रेट बन जाएगा। ठीक है ना, सो अप टू दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस को देखते हैं।